Dear students, good afternoon. In today's lecture, I am going to discuss with you following topics. First is size, location and number of voids. Second, calculation of formula on the basis of number of voids. Third, structure of simple ionic compounds. Fourth, effect of temperature and pressure on the crystal structure. Fifth, radius ratio rule. And number 6, calculation of density and numerical based upon them. So first of all, let us take the first topic, that is size of tetrahedral and octahedral void. In the previous lecture, I have told you that while packing the sphere, we get two types of voids in the second layer. Keeping hexagonal pattern of arranging the sphere, here I have placed first layer of pink sphere and second layer of a black sphere. Okay, so in the second layer I am getting two types of voids. That is, this one is tetra of second layer where I am pointing. This one is tetrahedral void, and these three are octahedral void. Why? Because they are formed on the tetrahedral voids of the first layer. Okay, so on placing second layer, we are getting two types of voids in the second layer, right? One, tetrahedral voids जो कि ये है, राइट, एंड सेकेंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि ये 3 है. ठीक है, यहीं से आपका टाइप ऑफ पैकिंग डिफर करता था. अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो सेकंड जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर से क्या करती थी, मैच करती थी, और उस पैकिंग को आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ ए बी टाइप बोलते थे. ठीक है, और अगर आप थर्ड लेयर के इन वर्ड्स को यूज करते हैं ऑक्टाहेड्रल्स को, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, अगर थर्ड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड थर्ड लेयर को रखने के लिए सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड हम यूज करें तो वी विल गेट थर्ड लेयर डिफरेंट देन द फर्स्ट two layer. In that case we will get cubic close packing, or which is also known as CCP. Okay, so tetrahedral words and octahedral word, two types of words are there. नंबर की अगर हम बात करें तो if n is the number of atom in a closed packed structure, in that case tetrahedral words are formed equal to 2n, double the number of atom, and octahedral words are formed equal to number of atom, right? So 1/2 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ एटम के 1/2 मींस इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनते हैं और डबल उसके टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं. अब बात करते हैं इनके रेडियस की. टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो आपका रेडियस में छोटा होता है. ठीक है, यहाँ पे साइड पे दिखाया हुआ है, तो साइज में वो छोटा होता है, और अगर कैपिटल आर आपका रेडियस ऑफ स्फीयर हो तो उस केस में टेट्राहेड्रल वर्ड का जो रेडियस है दैट इज 0.225 ऑफ आर. सिमिलरली रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड दैट इज 0.414 of r, where capital R is radius of a sphere. Okay, so tetrahedral words are related to radius of tetrahedral word are related to radius of a sphere in this manner, right? Next we have location of tetrahedral and octahedral void in a crystal, where they are located. तो लोकेशन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वर्ड्स मैंने अभी आपको बताया, किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में चाहे वो HCP है या CCP है, अगर हमारे पास n एटम पैकिंग में इन्वॉल्व हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपके जो है वो n बनेंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड डबल बनेंगे, मींस 2n बनेंगे. ठीक है, इनकी जो पोजीशंस हैं ये इस डायग्राम में दिखाई हुई हैं. हर ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपका एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज के सेंटर पे बनता है, हर एज के सेंटर पे. तो टोटल एजेस मैंने बताया था आपको, किसी भी क्यूब के 12 होते हैं. सो टोटल एजेस 12 है, इट मींस टोटल वी हैव 12
octahedral voids at edge center. Similarly, one octahedral void is present at body center, right? So total अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको पता है एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/4. तो 1/4 इंटू 12 ये 3 आएगा प्लस एट बॉडी सेंटर तो इक्वल टू 4. और आपको पता है एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं 4. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम 4 हैं, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं. पता लग गया सबको? इज इट क्लियर? 4 octahedral voids are there. How? 12 edges, contribution of 1 that is 1/4. So 1/4 multiplied by 12 equal to 3 plus 1 is at body center. So 3 plus 1 is equal to 4. तो जितने आपके पार्टिकल्स हैं मीन्स सीसीपी में आपने पढ़ा है, सीसीपी या एफसीसी एक ही बात है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि टोटल वॉइड कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4. तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे 4. अब बात करते हैं टेट्राहेड, ये इनकी लोकेशन बताई हुई है अब आपके एज सेंटर पे. अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ particles which are present at face center, corner, next face center and next face center. It means the particle present at corner that is touching particle present at 3 consecutive face centers, right? And as a result one tetrahedral void is generated. Since there are total 8 corners, right? So we will have total 8 tetrahedral voids, right, at each corner, or you can say that each body diagonal, these are 4 body diagonals जो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, 4 body diagonals हैं. हर body diagonal पे दो क्या होंगे octahedral voids होंगे, सॉरी tetrahedral voids होंगे. Is it clear? Next है अब आपका by knowing the voids, number of voids, we can calculate the formula of compound. For example, first question is a compound is formed by 2 elements X and Y. Atom of element Y, they make FCC arrangement or CCP arrangement, and those of element X, they occupy octahedral void. First of all ये समझ लें एलिमेंट Y जो है वो FCC अरेंजमेंट बना रहा है, मीन CCP अरेंजमेंट में है. इसका मतलब Y के जो एलिमेंट हैं वो आपके कहाँ पड़े हैं कॉर्नर पे और हर फेस के सेंटर पे. ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो आएंगे Y के वो आपके कितने आएंगे 4. ठीक है, और एलिमेंट X जो है वो कहता है सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है. इसका मतलब सीधी सी बात है अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितने बन रहे हैं 4. ठीक है, तो इसका मतलब X भी 4 है Y भी 4 है, तो रेशो कितनी आएगी 1:1. तो इट मींस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी XY. ऐसे निकाल लें या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम Y CCP में मान लिया n है, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे n होंगे. तो नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं क्योंकि उन पे एटम X पड़ा है तो इसका मतलब X का नंबर भी कितना होगा n, और रेशियो ऑफ X एंड Y इज इक्वल टू 1:1. सेकंड क्वेश्चन इज एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral void. यहाँ पे हम HCP lattice की बात कर रहे हैं, और HCP lattice और CCP में मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ही क्या बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, और उनसे डबल क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे. ठीक है, तो इस केस में कहता है HCP अरेंजमेंट है, एलिमेंट A जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ठीक है, तो इसके लिए लेट अस सपोज हमारे पास जो B एटम है मान लिया वो N है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 2N. अब कह रहा है 2/3 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड A के द्वारा ऑक्युपाई किए गए हैं. ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी आएगी 2/3 इंटू 2N दैट इज 4N/3. तो रेशियो ऑफ A एंड B निकालेंगे 4N/3
is to n and this will be equal to 4 is to 3. So formula will be A4B3. Okay, next is topic is structure of some simple ionic compound. पीछे हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो AB टाइप के हो सकते हैं, AB2 टाइप के हो सकते हैं और A2B टाइप के हो सकते हैं. A यहाँ पे कैटायन है, B यहाँ पे एनायन है. ठीक है, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड AB टाइप मींस 1 कैटायन 1 एनायन इन 1 फॉर्मूला यूनिट. AB2 में 1 कैटायन 2 एनायन and A2B में 2 cation and 1 anion. So let us take one by one. First of all is sodium chloride or rock salt type structure. In this type of structure we have FCC arrangement of chloride ion. You can see here these particle present at face center as well as corner of the cube and face center of the cube. These are chloride ion, right? And sodium ion, they are present at edge center and body center. ये देखें आप, हर edge के center में सोडियम पड़ा है और एक body के center में पड़ा है. This one is at body center and ये जो आप देख रहे हैं these are at edge center. हर edge के center पे है, right? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6. कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा नियरेस्ट नेबर कितने हैं आपके. तो यहाँ आप देखें सोडियम के सराउंडिंग में नियरेस्ट नेबर हम क्लोराइड देखेंगे कितने हैं. ओके, तो 1 2, ठीक है, 3 4. ये 4 अपने प्लेन में है, देखो एक ही प्लेन में है. 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन. तो टोटल कितने हुए 6, राइट. तो टोटल क्लोराइड आयन सराउंडिंग 1 सोडियम कैटायन दे आर इक्वल टू 6. सिमिलरली कोई भी क्लोराइड एनायन ले लें, क्लोराइड एनायन के सराउंडिंग में टोटल सोडियम कितने देखो 1 2 3 4. 4 अपने प्लेन में है, एक प्लेन से नीचे 5 और एक कहाँ होगा प्लेन से ऊपर सेकंड सेल में आएगा वो, ठीक है, सेकंड यूनिट सेल में. तो टोटल कितने होंगे 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, राइट. इट मींस each sodium ion is being surrounded by 6 chloride anion and similarly each chloride anion is surrounded by 6 sodium ion. Next is there are 4 units of NaCl present per unit cell. इसको समझें 4 यूनिट कैसे हैं. देखो क्लोराइड आयन गिनेंगे हम, टोटल कितने आएंगे देखो 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6. ओके, तो क्लोराइड आएंगे कितने आपके 4. सिमिलरली सोडियम कितने आएंगे, सोडियम भी आपके 4 आएंगे. कैसे 1/4 into 12 plus 1 at body center, right? So total 4 units of sodium chloride are present per unit cell, right? So next is cesium chloride type structure. In cesium chloride type structure we have BCC arrangement, body centered cubic arrangement. आप देख रहे हैं ये एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है in which cesium ion that is present at body center, right, and chloride ion they are present at corners. ये ध्यान रखना है आपने. ये थोड़ा सा कलर में यहाँ पे प्रॉब्लम है. ये कलर आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए कैसा रेड और ये कलर होना चाहिए कैसा ब्लू. तो थोड़ा ध्यान रखें. सेंटर में सीजियम है, ठीक है, और कॉर्नर पे ये आपका क्लोराइड है, ठीक है. तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होगा. क्यों पता है आपको, हर कॉर्नर को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं. तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल पड़ा है उसके साथ 8 क्यूब जुड़ेंगे और हर क्यूब के सेंटर पे एक एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे पड़ा है. तो इसका मतलब हर क्लोराइड के सराउंडिंग में 8 क्या होंगे सीजियम आयन होंगे. सिमिलरली हर सीजियम के सराउंडिंग में 8 क्या देख रहे हैं आप क्लोराइड आयन देख रहे हैं, ठीक है. ये ध्यान रखना थोड़ा सा है. यहाँ पे ये रेड होगा, ये आपका ब्लू होगा, ठीक है. बाकी इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सीजियम ब्रोमाइड है, सीजियम आयोडाइड है. नेक्स्ट इज जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर. In case of zinc blend type structure
वी हैव FCC अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयन। ये देखें सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन जो हैं ये ब्लू कलर के हैं, कॉर्नर पे पड़े हैं और हर फेस के सेंटर पे पड़े हैं, राइट। ये फेस के सेंटर पे है, सिमिलरली ये कॉर्नर पे है, ये फेस के सेंटर पे है। तो वी हैव FCC अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयन। एंड जो जिंक आयन है दे आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट मींस एक पे है दूसरे पे नहीं है। देखो अगर सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट बना रहा है इसका मतलब वी हैव हाउ मेनी टोटल 4 number of sulfide ion per unit cell, right? So if number of sulfide ion are 4, tetrahedral void should be 8, double, right? So out of which zinc is present on 4 voids only, this one, this one, this one and this one. So out of 8 void only 4 voids are being occupied by zinc cation, right? So zinc is present at alternate tetrahedral voids, right? And in this case coordination number is 4:4, 4:4. Each sulfide ion is surrounded by 4 zinc ion. Similarly each zinc ion is being surrounded by 4 sulfide ion. Next structure is calcium fluoride type structure. Calcium fluoride type structure में हमारे पास calcium ion they are present at corner and face center, right? ये जो आप रेड देख रहे हैं FCC अरेंजमेंट में कैल्शियम है, एंड जो फ्लोराइड आयन है दे ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। नेचुरल सी बात है, फ्लोराइड की संख्या क्योंकि फॉर्मूला में डबल है, तो अगर कैल्शियम 4 हैं तो फ्लोराइड कितने होंगे 8। इसका मतलब ये आपके 8 जो पॉइंट आप नीले देख रहे हैं ये क्या है फ्लोराइड है। इसका मतलब सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या पड़ा हुआ है फ्लोराइड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8:4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है उल्टा, दैट इज एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। एंड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में फ्लोराइड से उल्टा है, मींस कैटायन की जगह क्या आ जाएंगे एनायन, और एनायन की जगह क्या आ जाएंगे कैटायन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं FCC अरेंजमेंट में ऑक्साइड आयन है और आपके सोडियम आयन कहाँ जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सोडियम जा रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 4:8, उल्टा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर सम एग्जांपल, राइट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इन केस of sodium chloride we have studied that coordination number is 6:6. अभी हमने बात की 6:6 है, means each sodium atom is being surrounded by 6 chloride anion. Similarly each chloride ion is being surrounded by 6 sodium cation. So when we apply pressure on sodium chloride crystal, it gets converted into cesium chloride type structure, which is having BCC type of structure, in which coordination number is 8:8. So on applying pressure, sodium chloride type structure gets converted into cesium chloride. On the other hand, if we heat the crystal of cesium chloride, on heating naturally it will expand. Also on expansion coordination number will decrease, means coordination number 8:8 से कहां चला जाएगा 6:6 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और प्रेशर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो क्या है पहले इसको देखेंगे, राइट। Radius ratio is ratio of radius of cation divided by radius of anion. ये आपने ध्यान रखना है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन के रेडियस को जब हम क्या करते हैं एनायन के रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो रेशियो मिलती है दैट इज नोन एज रेडियस रेशियो, ओके। सो रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन। नाउ रूल क्या है, इसको कंफ्यूज ना करें, रेडियस रेशियो अलग चीज है, रेडियस रेशियो रूल अलग चीज है, ओके। सो रेडियस रेशियो रूल इज रिलेशन बिटवीन द रेडियस
and coordination number and the structural arrangement. Okay, how the radius ratio affect the coordination number and structural arrangement of a molecule. That relationship is known as radius ratio rule. And next point is greater the radius ratio, greater the value of radius ratio, larger will be size of cation. ये आपको यहीं से पता लग रहा है, ये रेडियस रेशियो तब ज्यादा होगी जब cation का रेडियस ज्यादा होगा anion का कम होगा, राइट? सो कहता है greater the radius ratio, larger is the size of cation, and in this case what is happening, coordination number भी क्या होगा, that will increase, बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस टेबल में आप देख रहे हैं कि अगर रेडियस रेशियो 0.155 से बिलो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, टाइप ऑफ वॉइड्स जो है मींस स्ट्रक्चर आपका लीनियर बनेगा। ओके, आपने ये वैल्यू याद रखनी है, 0.155 से लेके 0.225 तक अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इफ द रेशियो इज इन बिटवीन 0.225 to 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, शेप इज टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ जिंक सल्फाइड, पढ़ लिया हमने पीछे। नेक्स्ट इज 0.414 से लेके 0.732 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल like sodium chloride. And if ratio is in between 0.732 to 1, coordination number will be 8, structure will be cubic 1. Okay, and last, if radius ratio is 1, coordination number is 12, we have a HCP or CCP arrangement. So in case of metal we have studied this. Okay, so this is the relationship between radius ratio and coordination number. Now next is calculation of density by using dimensions of a unit cell. देखिए किसी भी सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो उसके यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है? और आपको पता है कि डेंसिटी आपकी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो हमें क्या करना है, डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट सेल का एक तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, टोटल कितना मास है पार्टिकल्स का, और दूसरा उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है? तो लेट अस सपोज पहले की तरह किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में लेट अस सपोज ए या क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, डी आपकी डेंसिटी हम कह रहे हैं, एम आपका मोलर मास है। मोलर मास आपने पढ़ा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है दैट इज नोन एज मोलर मास, ठीक है? लेट अस सपोज जब आपका एज लेंथ ए है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम दैट विल बी ए क्यूब। ओके, तो ए क्यूब आपने ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में है यहाँ पे लिया हुआ। अगर इसको पिकोमीटर में लेंगे देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power minus 30. Okay, minus why, because 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 10 centimeter, ठीक है? So picometer is 10 raised to power minus 12 meter, ये ध्यान रखना है आपने। So Z is the number of atom present per unit cell, ये हमने पीछे भी निकाले हैं। M is mass of each atom, ठीक है? Now mass of unit cell कितना हो जाएगा, number of atom means Z multiplied by mass of each atom that is equal to M, and M क्या होगा, M is molar mass divided by Avogadro number. Why? Because molar mass is mass of Avogadro number of atoms, so mass of one atom will be equal to molar mass divided by Avogadro number, right? So density of unit cell, that will be mass of unit cell divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे ध्यान देंगे डेंसिटी की जगह वॉल्यूम होगा, ठीक है? डेंसिटी ना होके यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ये करेक्शन है एक यहाँ पे। सो डेंसिटी आपकी आ गई Z इंटू एम अपॉन ए क्यू, और यहाँ पे m की वैल्यू रखी गई है m अपॉन एन ए। सो दिस विल गिव यू डेंसिटी। ओके, ये फॉर्मूला याद रखें। हाँ, यही फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड में भी लगा सकते हैं हम, लेकिन वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है आपने, Z जो होगा वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट होंगी, और जो M होगा वो आपका फॉर्मूला मास लिया जाएगा, ठीक है? मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट जो है दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे M की जगह फॉर्मूला मास रखेंगे, Z की जगह आप नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स रखेंगे, ठीक है? और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, डेंसिटी उसी तरीके से निकलेगी जैसे आपकी
निकाली जा रही है, राइट। ये फिर कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनमें डेंसिटी की कैलकुलेशन की गई है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में सिल्वर एटम लिया हुआ है जिसका कहता है सीसीपी टाइप का लैटिस है, और कहता है कि इसकी जो एज लेंथ है यूनिट सेल की, मींस ए की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 408.6 पिकोमीटर, 408.6 पिकोमीटर। कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एटम, सिल्वर एटम की डेंसिटी लिखें। यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं दिया है, एटॉमिक मास जो है सिल्वर का 108 होता है, ठीक है। तो 108 आपने सिल्वर का एटॉमिक मास, या यहाँ पे ये दे रखा है 107.9। ओके, सो सॉल्यूशन में सेम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मोलर मास दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ एटम देखो HCCP या FCC में कितने होते हैं 4, तो Z की वैल्यू 4, ये आपका मोलर मास M, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ यूनिट सेल के एज लेंथ की, ठीक है। तो ये थी 408.6 और पिकोमीटर में थी, तो इसको किस में बदला, सेंटीमीटर में। और मैंने कहा अगर मीटर में बदलना होगा तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो उस टाइम 10⁻⁻10 के बराबर करना है आपने, ओके। तो इस तरह से ग्राम पर सीसी में आ जाएगा। दूसरा है आपका सोडियम का BCC अरेंजमेंट है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसमें दे रखा है, कैलकुलेट, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें इस न्यूमेरिकल में। इसमें देखें BCC अरेंजमेंट है और नियरेस्ट नेबर, BCC में आपको पता है कॉर्नर के पार्टिकल बॉडी सेंटर के पार्टिकल को टच करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें बॉडी डायगोनल निकालना पड़ा था, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल में जो एज है A, उसका और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का आपस में रिलेशन ये है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है क्लोजेस्ट पड़ोसी, मींस कॉर्नर का पार्टिकल बॉडी सेंटर के पार्टिकल को टच करता है, तो उस डिस्टेंस को हम निकालेंगे, दैट इज √3a, √3a डिवाइडेड बाई 2, आधा होगा उसका, ठीक है, हाफ। तो यहां से a निकाल लेंगे और a की वैल्यू 422.5 पिकोमीटर आएगी, ठीक है। BCC रेंज के एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू 2 है, सो M की वैल्यू 23 है, सोडियम का एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है। और इसको पुट करके इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी 1.51 ग्राम पर सीसी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, गोल्ड जो है कहता है एटॉमिक नंबर उसका दे रखा है 197, एटॉमिक रेडियस उसका दे रखा है 0.144 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर, ओके। उसका कहता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, इसकी डेंसिटी निकालें, ठीक है। तो इस केस में FCC अरेंजमेंट में सेम आपका R निकाल लिया हमने, A निकल जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं, फेस डायगोनल से निकलेगा ये, ठीक है। और आपका जो वैल्यू है दैट इज 0.407 नैनोमीटर एंड इट इज इक्वल टू सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻⁹, ओके। और इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी 10⁻⁷ आएगी है सेंटीमीटर में, मीटर में आएगी तो 10⁻⁹, यहाँ पे 10⁻⁷ सेंटीमीटर में। तो ग्राम पर सीसी में इस तरह से डेंसिटी आपकी निकल जाती है, ठीक है। तो ये तो थी एक टाइप की। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, दूसरा आप मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, इसमें नंबर ऑफ एटम है, M मोलर मास है, A आपका एज लेंथ है और N एवोगाड्रो नंबर है और D डेंसिटी है। तो टोटल 1 2 3 4 5 वेरिएबल आर देयर, 5 में से कोई 4 अगर आपको पता हो तो पांचवा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे ये सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड टाइप का, जिसमें हम BCC अरेंजमेंट ले रहे हैं। L एज की लेंथ आपको दे रखी है 288 पिकोमीटर और एलिमेंट की जो आपका डेंसिटी है वो दे रखी है। आपसे पूछा है कि 208 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने होंगे, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ एटम BCC में 2 होते हैं, M मोलर मास है, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ से निकला कितना, 51.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 51.8 ग्राम
अगर एलिमेंट का हम लेते हैं तो उसमें कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, तो 208 ग्राम में कितने होंगे, ये निकल गए, राइट। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर के का एक एग्जांपल है, इसमें कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC अरेंजमेंट, ये ध्यान रखना है। एज आपको दे रखा है, ठीक है, और कॉपर कहता है डेंसिटी इतनी है, ठीक है, एटॉमिक मास कॉपर का निकालें, तो एटॉमिक मास नेचुरल सी बात है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ m, तो ये वैल्यू आएगी 63.1 ग्राम पर मोल। ओके, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस ऑफ क्वेरीज you can contact me on my mobile number.